YouTube channel. Today we are going to discuss about the most interesting subject in pharmacy, that is pharmaceuticals. Guys, this video will definitely help you to know about what is pharmaceutics, what are dosage forms, classification of dosage forms, prescription, parts of prescription and posology. So, let us start with what is pharmaceuticals. फार्मास्यूटिकल्स फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डोसेज फॉर्म के फॉर्मूलेशन का, उसके मैन्युफैक्चरिंग का, उसके स्टेबिलिटी का या तो उस ड्रग के इफ़ेक्टिवनेस का स्टडी किया जाता है. So how we can define the pharmaceuticals? Pharmaceuticals is the branch of pharmacy which deals with the study of formulation, manufacturing, stability and effectiveness of pharmaceutical dosage form. गाइस, ये जो मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल होते हैं ना, उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए या तो उसके स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हर एक कंट्री के गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं. हर एक कंट्री का एक ऐसा बुक होता है जिसमें ये सब स्टैंडर्ड्स और ये सब नॉर्म्स मेंशन किए जाते हैं. उसे ही फार्माकोपिया कहते हैं. फार्माकोपिया एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है. इट इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ all pharmaceutical substances, formulae along with their description and standard. Also, it includes the sources, uses, dosage and storage conditions of dosage form. So, how we can define the pharmacopoeia? Pharmacopoeia is an official publication containing list of medicinal substances, crude drugs and formulate for making the preparations for them. Now let us talk about the dosage form. डोसेज फॉर्म को डिस्कस करने से पहले ड्रग्स के बारे में पता होना ज़रूरी है. सिंपली कहा जाए तो ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बीमारी को ट्रीट करते हैं या तो उसके सिम्टम्स को रिलीव करते हैं और इट मॉडिफाइज द chemical processes in our body. Now how we can define the drugs? Drug is any substance which taken into the body which alters the body's functions either physically or psychologically. जनरली ड्रग को अकेले यूज़ नहीं किया जाता. ड्रग्स आर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन डोसेज फॉर्म. अब सवाल ये आएगा कि ड्रग्स तो बीमारी को ठीक करते हैं, तो फिर डोसेज फॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इसका जवाब है फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. गाइस, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है. ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. तो ड्रग के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ड्रग्स शुड बी फॉर्मुलेट विथ other non-drug substance, or we can say it additives or excipients like vehicles, disintegrating agents, flavoring, sweetening, coloring agents, stabilizers, binding agents, etc. Now how we can define the dosage forms? Pharmaceutical drug products by which drug molecule are delivered to their site of action are known as dosage form. Now the most important is classification of dosage form. There are two types of classification of dosage form. First one is on the basis of physical form of the dosage form and another one is on the basis of route of administration of dosage form. So at first, on the basis of physical form, dosage form is classified into four major classes. First one is solid dosage form, second is liquid dosage form, third is semi-solid dosage form or fourth is gaseous form or inhalation dosage form. Let us discuss about solid dosage form. Solid dosage form is again divided into two classes, that is unit dosage form and bulk dosage form.
यूनिट डोसेज फॉर्म को सिंगल यूनिट कंटेनर में सील किया जाता है और यह ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसके कंटेंट्स पेशेंट को सिंगल डोज में एडमिनिस्टर किया जा सके। इसके एग्जांपल्स में है टैबलेट्स। टैबलेट्स के भी बहुत प्रकार है, लाइक चिवेबल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स एक्सेट्रा। अगेन कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है हार्ड शेल्ड कैप्सूल, इसमें जनरली ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और दूसरा है सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल, इसमें ऑयल जैसे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगेन पील्स, लोजेंजेस। लोजेंजेस क्या करते हैं? लोजेंजेस हमारे थ्रोट के इरिटेटेड टिश्यू को लुब्रिकेट करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल्स हमें पता है, विक्स की गोली। अब बल्क डोसेज फॉर्म। बल्क डोसेज फॉर्म बल्क क्वांटिटी में लिया जाता है, जैसे कि पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म भी दो क्लासेस में डिवाइड होता है। पहला है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स सिंगल फेज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलिक्जर्स, सिरप। गाइस, इलिक्जर और सिरप में क्या फ़र्क होता है? इलिक्जर्स में सोल्युबिलिटी के लिए अल्कोहल मस्ट कंपोनेंट होता है और सिरप में अल्कोहल नहीं होता। ये एक शुगर का एक्वियस और विस्कस सॉल्यूशन होता है। अगेन लिनीमेंट्स, लोशन। लिनीमेंट्स को स्किन पे रब करना पड़ता है, जैसे कि बाम, और इन केस ऑफ लोशन देयर इज नो नीड ऑफ रबिंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिंक्टर्स, ड्रॉप्स। ड्रॉप्स भी नेसल ड्रॉप हो सकता है, ईयर ड्रॉप हो सकता है, आई ड्रॉप हो सकता है। ओके, देन बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें दो फेजेस होते हैं, जैसे कि ऑयल, वाटर। इसके एग्जाम्पल्स है सस्पेंशंस, इमल्शंस। नाउ नेक्स्ट क्लास ऑफ डोसेज फॉर्म इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स है ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स। गाइस, ऑइंटमेंट और क्रीम जो होती है ना, वो ग्रीसी होती है, और पेस्ट और जेल्स नॉन ग्रीसी। नेक्स्ट गैसियस फॉर्म और इनहेलेशन डोसेज फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स है एरोजोल्स, स्प्रेज, इनहेलर्स। नाउ the second classification of dosage form is on the basis of their route of administration. Dosage form is administered by different routes. In that, first one is oral route of administration. Examples are powders, tablets, capsules, solutions, suspensions, emulsions, syrups, elixirs, and pills. Next, parenteral route of administration. In that, intravenous, intramuscular, intradermal, subcutaneous, intrathecal. गाइस, इंट्राथिकल मतलब स्पाइनल कैनल में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इपिड्यूरल। इपिड्यूरल मतलब ड्रग इज इंजेक्टेड इन epidural space around the spinal cord. Next, intra-arterial, intra-articular. इंट्रा-आर्टिकुलर को जॉइंट इंजेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंट्राकार्डियक, इंट्राओक्यूलर। इंट्राओक्यूलर को आई इंजेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंट्रापेरिटोनियल। इसका मतलब है ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू पेरिटोनियम, दैट इज body cavity. This method is generally applied in animals than human. Next is topical route of administration. In that, ointments, creams, powders, paste, lotions, liniments, gels. Next is rectal route. In that, suppositories, enemas, ointments. Next is vaginal route. In that, pessary, suppositories, creams, ointments, douches. Next, sublingual route. In that, tablets, lozenges. Next, otic. In that, eardrops. Next is
ophthalmic, in that eye drops, ophthalmic ointment and gels. Next, urethral route of administration, in that suppositories. And last one is nasal route, in that solutions, sprays, inhalers, nebulizers and aerosols. Now let us discuss about the prescription. What is prescription? Prescription is written order from registered medicinal practitioner to pharmacist to compounding and dispensing medication for the patient. गाइस, प्रिस्क्रिप्शन में टाइम सेव करने के लिए बहुत बार लैटिन वर्ड्स और एब्रीवेशंस भी यूज़ किए जाते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. There are 7 main parts of prescription. In that, first one is date, second is name, age, sex and address of the patient. ये चिल्ड्रन के डोज कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है. उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन को RX सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब क्या है? यू टेक. पुराने ज़माने में ऐसा मानते थे कि ये सिंबल जुपिटर के साइन से ओरिजिनेट हुआ है. जुपिटर इज गॉड ऑफ हीलिंग. उसके बाद है इंस्क्रिप्शन. ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है. इट कंटेन्स नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स. आजकल ऐसे ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो ऑलरेडी सुटेबल फॉर्मुलेशन में होते हैं. सो कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन. इसमें नंबर ऑफ डोसेस दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज सिग्ना और सिग्नेचुरा. इसमें पेशेंट को प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं. दैट इज़ अबाउट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डाइल्यूशंस, timings, quantities, etc. And the last one is signature, address, registration number of prescriber. Okay, now let us discuss about posology. Posology मतलब ड्रग की कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए for best therapeutic action. How we can define posology? Posology deals with the dose or quantity of the drug which is administered to produce therapeutic action. ओ कहाँ चले? लाइक और सब्सक्राइब तो कर लो. अभी कर ही दिया है तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दो. थैंक यू.